ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ। बार सगेरा दसो कि किथे मिले क्यों रोए की गल हो गई है की होया दसो की गल हो क्यों रोए उदासियां मुक गईयां।
उदासियाँ मुक गईयाँ, उदासियाँ मुक गईयाँ। बोलना उलझन मेरे नाल, हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल। मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर सिखाया है। वो चलियां बड़ियां तूफानां ने मिलाइयां, डूबदा सी सारियां। चलियां बड़ियां सी बारियां, तूफानां ने मिलाइयां, डूबदा सी सारियां। किंज होना अगे खड़े रहना है, मैनू यीशु ने सिखाया है। वो किंज होना अगे खड़े रहना है, मैनू यीशु ने सिखाया है। हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल, हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल। मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे साथी ने सिखाया है। वो मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे साथी ने सिखाया है। लोकी कहते लंगे पानी मुड़दे नहीं, शीशाए ते दिल कदे जुड़दे नहीं। लोकी कहते लंगे पानी मुड़दे नहीं, शीशाए ते दिल टूटे जुड़दे नहीं। ये ज़माने जदों दिल तोड़िया, यीशु जोड़ के दिखाया है। ए ज़माने जदों दिल तोड़िया, यीशु जोड़ के दिखाया है। हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल। ओके समय आके जदों घेर लेंदे सी, अपने भी उदों अखां फेर लेंदे सी। औखे समय आके जदों घेर लेंदे सी, अपने भी जदों अखां फेर लेंदे सी। ओथे मां ओथे बाप ओथे यार, यीशु आण के लिखाया है। ओथे मां ओथे बाप ओथे यार, यीशु आण के लिखाया है। हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल, हालात नु बोलना उलझन मेरे नाल। मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। वो मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। मेरे यीशु ने सिखाया है। मेरे यीशु ने सिखाया है। मेरे यीशु ने सिखाया है।
ਇਹ ਸਾਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੁਝੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁਝੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਯਿਸੂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ
चंगी लगे पावे ओ किसे नू ना गल चंगी लगे पावे मैं ते बस रहना यीशु तेरी छावे जिंदगी जान यीशु तेरे नामे मेरी जिंदगी जान यीशु तेरे नामे मेरी जिंदगी जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਾਵੇਂ दुख सारे जिंदगी जो तू मुकावे मैं ते बस रहना यीशु तेरी छावे दुख सारे जिंदगी जो तू मुकावे मैं ता बस रहना यीशु तेरी छावे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे महाअभिषेक तेरा जदों दा मैं पा लिया मुक्तिया लिया नवा जीवन मैं पा लिया महाअभिषेक तेरा जदों दा मैं पा लिया मुक्तिया लिया नवा जीवन मैं पा लिया हुण नहीं डर जग रोके पावे हुण नहीं डर जग रोके पावे जिंदगी नू लाया यीशु तेरू नामे हुण नहीं डर जग रोके पावे जिंदगी नू लाया यीशु तेरे नामे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने मैं तेरे बस रहना यीशु तेरी छावे सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने मैं तेरे बस रहना यीशु तेरी छावे जिंद तेरे नामे साह तेरे नामे मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे जिंद तेरे नामे साह तेरे नामे मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे एक एक सा यीशु तेरे नामे मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है जदों दी यीशु ने मेरी बांह फड़ लई है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है
यीशु नाल होया मंजूरियां जदों दियां यीशु नाल होया मंजूरियां मुक गए ने पैने सारे मुक गईयां दूरियां मुक गए ने पैने सारे मुक गईयां दूरियां कमी भी ना रही है हुण कमी भी ना रही है कमी भी ना रही है कोई कमी भी ना रही है जदों दी यीशु ने मेरी बांह फड़ लई है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है माफ कर दित्ती मैनू यीशु तकसीरे माफ कर दित्ती मैनू यीशु तकसीरे पलां विच फेर दित्ती मेरी तकदीरे माफ कर दित्ती मैनू यीशु तकसीरे माफ कर दित्ती मैनू यीशु तकसीरे पलां विच फेर दित्ती मेरी तकदीरे तेरे नाम वाली इक होठ तक लईए तेरे नाम वाली इक होठ तक लईए जदों दी यीशु ने मेरी बांह फड़ लई है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है महाअभिषेक विच रूह नाल भरांगा महाअभिषेक विच रूह नाल भरांगा चरनां च बैठ के सदा हाज़रियां भरांगा चरनां च बैठ के सदा हाज़रियां भरांगा खुशी विच संग पैरिस गल हो गई खुशी विच संग पैरिस गल हो गई है जदों दी खुदा ने जदों दी यीशु ने मेरी बांह फड़ लई है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है बोझ लग
मेरे सिरे उत्ते हाथ ओ वधावे हरे बंधन खुलदा जाए मेरे सिरे उत्ते हाथ ओ वधावे हरे बंधन खुलदा जाए पापी छुटकारा पावे पापी छुटकारा पावे हरे बंधन खुलदा जावे तेरा महाअभिषेक जदों आवे हरे बंधन खुलदा जावे तेरा महाअभिषेक जदों आवे हरे बंधन खुलदा जावे यीशु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे यीशु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे हत्थां ते लिख दे सेवा करनी हत्थां ते लिख दे सेवा करनी सेवा करदी कदे ना मैं थका कदे ना मैं अक्का तू सोने सोने लेख लिख दे सेवा करदी कदे ना मैं थका कदे ना मैं अक्का तू सोने सोने लेख लिख दे जो मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे पैरां ते लिख दे बंदगी ते जाना पैरां ते लिख दे बंदगी ते जाना ओ बंदगी जावां कदे ना मैं थका कदे ना मैं अक्का तू सोने सोने लेख लिख दे बंदगी जावां कदे ना मैं थका कदे ना मैं अक्का तू सोने सोने लेख लिख दे यीशु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे अखां ते लिख दे दर्शन करना अखां ते लिख दे दर्शन करना दर्शन करा मैं शाम सवेरे मैं शाम सवेरे तू सोने सोने लेख लिख दे दर्शन करा मैं शाम सवेरे मैं शाम सवेरे तू सोने सोने लेख लिख दे जीवा के लिख दे प्रेर करना जीवा के लिख दे प्रार्थना करना प्रार्थना करनी कदे ना मैं अक्का कदे ना मैं थका तू सोने सोने लेख लिख दे प्रार्थना करनी कदे ना मैं अक्का कदे ना मैं थका तू सोने सोने लेख लिख दे कन्ना ते लिख दे वचन सुनना कन्ना ते लिख दे वचन सुनना वचन सुनदी मैं शाम सवेरे मैं शाम सवेरे तू सोने सोने लेख लिख दे वचन सुना मैं शाम सवेरे मैं शाम सवेरे तू सोने सोने लेख लिख दे यीशु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे तू सोने सोने लेख लिख
तूतां दियां सवरगां आईयां होणगियां अज पल दिन तूतां दियां सवरगां आईयां होणगियां वडियाइयां होणगियां हो यीशु दे नाम दियां वडियाइयां होणगियां हो यीशु दे नाम दियां वडियाइयां होणगियां हो यीशु दे नाम दियां वडियाइयां होणगियां सकल ग्रहण महाअभिषेक कर लो सकल ग्रहण महाअभिषेक कर लो काली दिलां नूं महासामर्थ भर लो काली दिलां नूं महासामर्थ भर लो मांगी उकाबे उड़ानां दियां ऊंचाइयां होणगियां मांगी उकाबे उड़ानां दियां ऊंचाइयां होणगियां यीशु दे नाम दियां वडियाइयां होणगियां हो यीशु दे नाम दियां वडियाइयां होणगियां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां इबलीस दियां तोड़िए रफाकतां इबलीस दियां तोड़िए रफाकतां के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया 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 यीशु के नाम दियां वडियाइयां होणगियां हो यीशु के नाम दियां वडियाइयां होणगियां तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा हमको सना के नारे यीशु तू सना के नारे यीशु तेरे कर विच लावांगा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा नाच नाच आज तेरी सना सिखावांगे नाच नाच आज तेरी सना सिखावांगे पागल में फला नल पल दे जावांगे पागल में फला नल पल दे जावांगे रूहे पाक दी चौकश यीशु रूहे पाक दी चौकश यीशु तेरे घर विच आवांगा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा महाअभिषेक तेरा यीशु ते आया है महाअभिषेक तेरा यीशु ते आया है रूह सा मेरी जिंदगी छाया है रूह सा मेरी जिंदगी छाया है महासामर्थ दे नाल तू पर दे महाअभिषेक दे नाल तू पर दे जकड़ियां छड़ावांगा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा दुकान मिले सी जश्न मनावांगे दुकान मिल के ते जश्न मनावांगे हालेलुया होसना दे नारे लगावांगे हालेलुया होसना दे नारे लगावांगे स्वर्ग दूतां दे नाल यीशु स्वर्ग दूतां दे नाल यीशु तेरा जश्न मनावांगा तेरी हमको सना तेरी हमको सना तेरी हमको सना यीशु नामा
बाप बेटा पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। खुदावंद यहोवा आप स्वर्ग में बैठे हुए हो, आपके पांव धरती पर हैं। हम आपके सिंहासन के सामने अपने परिवारों को लाते हैं, अपने परिवारों को लाते हैं, अपने आप को लाते हैं। खुदावंद यहोवा पाक प्रभु जी, यीशु राम जी, यीशु मसीह जी, आप हमारी जिंदगी में दखल दो। आप हमारी जिंदगी के उन हिस्सों में दखल दो जहां हम देख नहीं पाते। आप हमारे परिवारों में उन जगह दखल दो जहां हम पहुंच नहीं पाते। आप हमारे घरों में उन जगह दखल दो जहां हम देख नहीं पाते। आप हमारे घरों में उन जगह दखल दो जहां हमारे विरोधियों ने जादू टोना श्राप किए हैं। प्रभु जी हमारी जिंदगियों में आओ, अपने महासामर्थ लेकर आओ। प्रभु जी आपको यीशु नासरी ने जब वो धरती से स्वर्ग पर जिंदा गए तो ठीक 10 दिन बाद उन्होंने आपको यहाँ भेजा अपने सहायक के तौर पर कि जो काम खुदावंद यहोवा ने जिस मिशन के लिए मुझे भेजा उस मिशन को आगे आपने पूरा करना है। खुदावंद यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पुत्र ने अपने लहू बदन की बलि सलीब पर दी और हमको एक जीने का नया रास्ता दिया, एक नई राह दी। क्योंकि जो पहले व्यवस्था थी मूसा के टाइम से बनी थी कि अगर कोई आदमी छोटा पाप करता था तो उसको छोटी बलि देनी पड़ती थी, और कोई बड़ा पाप करता था तो उसको बलि बड़ी देनी पड़ती थी। लेकिन उनमें ज्यादा धन दौलत हुई, उनमें ज्यादा लालच हुआ और वो धीरे धीरे ज्यादा बलियां लेने लगे। हर काम के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो आपके बेटे बेटियां थे वो आपसे दूर होते गए। उनके दिमाग में ये बात आई कि अभी यहोवा की क्या जरूरत है, उसके पास जाने की क्या जरूरत है, जितना मर्जी पाप करो, बलि दो और बलि हो जाओ। तो खुदावंद यहोवा को ये देखकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं और इस धरती पर पाप बढ़ रहे हैं। खुद याजक ही जब उनके पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो वो लोग व्यभिचार में आ गए, झूठ बोलने पर आ गए। लोगों को झूठ के नाम पर जो निर्दोष बलियां थी उनकी बजाय उन्होंने बीमार पशुओं की बलियां लेनी शुरू कर दी। लोगों को छोटी छोटी बातों पर डराना शुरू कर दिया कि तुमने ये पाप किया है, तुमको बलि देनी पड़ेगी। वो बिना सहमति के ही हर एक को प्रभु के नाम से डराते थे। ये देखकर खुदावंद यहोवा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मलाकी नबी को जो कुछ भी नहीं थे और प्रभु यीशु के आने से 400-500 साल पहले उन्होंने मलाकी नबी को अपने दिल की बातें बताई। खुदावंद यहोवा परमेश्वर हमारे खुद उसके पास गए, उससे वो बातें की कि देखो मलाकी का मतलब होता है परमेश्वर का दूत। शायद उसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, लेकिन बाइबल में उसको हम मलाकी नबी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि मलाकी का नाम है एक परमेश्वर का दूत, एक संदेश वाहक जो हमारे पास प्रभु का संदेश लेकर आया है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि हमारे जो आज के दिन है हम कैसे बिता रहे हैं, हम प्रभु के पास हैं या दूर हैं या पाप कर रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं। तो वो सब बातें परमेश्वर खुदावंद यहोवा ने मलाकी से की और मलाकी को बोला कि ये जो याजक लोग हैं सदूकी और फरीसी ये पैसे के लालच में व्यभिचार में आ गए हैं, ये बिरानी देवते की कन्याओं से विवाह कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं और जब तक इनके पत्नियों के ये छोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि मैं गवाह हूँ, मेरे सामने इन्होंने अपना परिवार
परिवार बनाया है, उन लड़कियों से शादी की है और इस तरह ये व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं। तो मलाकी नबी ने उन लोगों को फटकार लगाई कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और उस समय लोगों ने परमेश्वर से ये एक आराधना की, एक प्रेयर की, उसके चरणों में, उसके सिंहासन के सामने आकर सब लोग ये जो उसके सामने गिड़गिड़ाए, रोए कि देखो परमेश्वर हम लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, वो लोग हमारे साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, आप चुप क्यों हो, आप हमारा न्याय क्यों नहीं करते हो। तो आज हम जबूर 82:1 से पढ़ेंगे असाफ दा भजन। जबूर 82 परमेश्वर की मंडली में परमेश्वर बैठा है, क्योंकि उस वक्त इजराइल में मूर्ति पूजा बहुत चलती थी। हर लोग ये कहते थे कि मेरा भगवान बड़ा है, वो दूसरे लोग कहते थे मूर्ति पूजा वाले हमारा भगवान बड़ा है। इन बातों का विरोध हो रहा था, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु इस धरती पर नहीं आए थे और ये उनके आने से 400-500 साल पहले की बात है। उन लोगों को एक आस थी कि हमारा मसीहा आएगा और हमारे दुखों का नाश होगा। तो उन्होंने मलाकी के जरिए, मलाकी नबी के जरिए ये संदेश भेजा कि आप लोगों को तैयार करो और जो मैंने अपना बेटा यहाँ भेजना है उसके लिए एक मार्ग तैयार करो। लोगों के दिलों में ये बात डालो कि जो ये लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं मैं इनका इंसाफ करूंगा। जो मेरे विरोध में खड़े होंगे, मेरे वजूद से इनकार करेंगे, क्योंकि मैंने सृष्टि बनाई है, मैं उनका नाम निशान मिटा दूंगा। इसलिए हम आज जबूर 82 को पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु खुदावंद यहोवा ने उस बात को कैसे किस ढंग से किया और लोग उनसे क्या फरियाद करते हैं कि हम अपने दिल से जो आज हमारे घरों में जो जादू टोने शराबों की शक्तियां हैं, हम बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसलिए हम आज शाम को सबत के दिन इकट्ठा हुए हैं कि हमारे यहाँ आज ये वो दिन है जब पवित्र आत्मा जी इस धरती पर आए। हम पवित्र आत्मा जी को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा जी आओ हमारी जिंदगी में आओ। प्रभु यीशु के नाम से जो महासामर्थ है आपके पास, वो स्वर्गदूतों के साथ हमारी जिंदगी में आओ, हमारे फाइनेंस में तब्दीली लाओ। जब हम पवित्र आत्मा जी को पुकारेंगे तो हमारी जिंदगियों में इंस्टेंट मिराकल होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे घरों में बीमारियां हैं, जो शारीरिक बीमारियां हैं, फाइनेंस की तंगी है, वो आज ही पवित्र आत्मा जी यीशु के नाम से जाती रहेगी। इसलिए हम भी वो प्रेयर करेंगे जो प्रभु यीशु के आने से पहले जो लोग करते थे, जब वो अपनी जिंदगी से निराश और परेशान हो चुके थे। ये 2026 वो साल है जब परमेश्वर खुदावंद यहोवा ने यरूशलेम में हमारे नबी संत फैज मसीह जी को ये वचन दिए कि आप मेरा मिशन पूरा करो, मैं आपका मिशन पूरा करूंगा। और जो उनका मिशन है कि हर एक घर से बीमारी, तंगी, परेशानी दूर करनी है। जो लोग पापों में हैं उनको धर्मी बनाना है। आज वही प्रेयर हम अपने इस जगह पर बैठकर प्रभु के सामने, उसके सिंहासन के सामने करते हैं। अपने परिवारों को साथ लेकर, अपने जो परिवार बच्चे हैं उनको साथ लाते हैं और उनके सामने ये प्रेयर करेंगे। तो आइए हम 2 मिनट लगाकर ये प्रेयर करें। ज़बूर आयत 82 और पहली आयत 82 है। परमेश्वर देवतियां दी सभा विच खलोता है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦਿਓਗੇ। ये तुसी भी पढ़ना, सारे ने पीछे पीछे बोलना, सभी बोलेंगे एक साथ। पहले आप बोलेंगे, उसके बाद सारे एक साथ बोलेंगे। परमेश्वर देवतियां दी सभा विच खलोता है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦਿਓਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦਿਓਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਠੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਠੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ। हालेलुया। हालेलुया। स्वागत करो पाक रो का स्वागत करो पाक रो। ये हम आपका इस धरती पर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आओ हम आपका स्वागत करते हैं, पाक का पवित्र आत्मा ने आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पाक रो के नाम में आप पाक के हमारे परिवार में आप पाक के हमारे फाइनेंस में आप पाक के हमारे जगह पर जाओ जहाँ पर हम देख रहे हैं पाक रो आइए हमारी जिंदगी में जगह दे दी है, हमारे बच्चों की जिंदगी में जगह दे दी है। बाबू जी हम अगर कहीं गलती करते हैं तो हमको समझाइए। आप एक सहायक हैं जो प्रभु यीशु ने आपको यहाँ पर भेजा है। आप हमारी जिंदगी हमको गाइड कीजिए, हमको दिशा निर्देश दीजिए, हमको समझाइए। हम आपसे अपना हमसे आत्मविश्वास गहरा हो गहरा समझ चाहते हैं। हम सत्ता के साथ आपके साथ वो हम अपना क्या आप अपने प्राणियों को माफ करोगे तो मैं आपको माफ करूंगा। आप स्वर्ग के मालिक हो गए, स्वर्ग में आपकी मर्जी अपने घर में हम अपने मूल्यों को छोड़ते हैं। हम अपने आप को आप
आपके हजूर करते हैं, आपकी योजनाएं हमारे लिए हो। बनाते हैं परमेश्वर। जो बात हमने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ खुदा आपके खिलाफ जो छोड़ गया हम उसको आज ही छोड़ना चाहते हैं। अपना रिश्ता पाक करूं और खुदा आपके साथ हम गहरे से गहरा बनाना चाहते हैं। हम अपने परिवारों को आपके सामने बेटे यीशु के सामने लाते हैं, लेकर खड़े हैं आप हमारे परिवारों की जिंदगी में रख दो। हम हर जगह फेलियर हैं, हम हर जगह अपनी लड़ाई हार चुके हैं। परमेश्वर खुदावंद यहोवा आप हमारी जिंदगियों में आओ। खुदावंद यहोवा प्रभु यीशु आपके नाम से हमारी जिंदगियों में वो फेलियर शब्द हटाएगा जिसके कारण हम आज तरक्की नहीं कर रहे। परमेश्वर यहोवा खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से आज वो हमारी जिंदगियों में जहाँ जहाँ जादू टूना शराब है वो आज से अभी प्रभु यीशु के नाम से जाते रहेंगे। हम अपनी बात आज ही बंद करते हैं। हम अपने दिल से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से चुगली, जलन, ईर्ष्या और गलत काम जो करते हैं वो आज ही बंद करते हैं। प्रभु की वसीयत आज ही हमको मिलेगी। उन्होंने बोला है कि आप सभी शरीर की व्यवस्थाओं के अंदर जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको छोड़ो। मेरे बेटे यीशु ने जो आपके लिए गुड फ्राइडे वाले दिन अपने लहू बदन की बलि सलीब पर दी और एक नया रास्ता तैयार किया, आप उस रास्ते पर चलो। और जो बलियों का सिलसिला था उनके बेटे ने अपने लहू बदन की बलि देकर सब कुछ बंद कर दिया और एक नया रास्ता बनाया और हम सबको धर्मी बना दिया। और उन्होंने हमारी सहायता के लिए पाक रूह को इस धरती पर भेजा। हम पाक रूह से वचन करते हैं, वाचा करते हैं कि हम उसके साथ गहरे से गहरा रिश्ता बनाएंगे और हम अपने बच्चों को आत्मिक बनाएंगे। हम प्रभु के लिए जिएंगे क्योंकि उस प्रभु ने हमको बनाया है, उसने ये सृष्टि बनाई है, इसलिए हमको प्रभु ने चुना है। हम खुद नहीं उसके पास आते, हम खुद उसका नाम नहीं लेते, लेकिन वो हमको चुनता है। जो पीछे रह गए हैं प्रभु का नाम सुने बगैर प्रभु उनको चुनता है और आगे लाता है। इसलिए हम नबियों के शब्दों में जो उन्होंने बोला है, आपके जो काम अटके लटके हुए हैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, वो सभी इसी साल में होने जा रहे हैं। इसलिए हम आज अपने इस 1 घंटे की वर्शिप में यीशु नासरी के नाम से आज शुरू करते हैं और यीशु नासरी को आमंत्रित करते हैं कि हम आपके नाम से, आपका नाम यहाँ लिया जाना है। खुदावंद यहोवा का नाम हम वर्शिप करते हैं आपकी। आप यहाँ हमारे बीच में आओ और पवित्र आत्मा जी आप उनके साथ आओ। जब हम आपको अपने दिल की बातें सुनाएं, परमेश्वर जी आप हमारे दिल की बातें सुनना चाहते हो। परमेश्वर जी हम आपके साथ अपने दिल की बातें करना चाहते हैं। आप अपने दिल की बातें बोलिए, हमारे बीच में आप महसूस करेंगे पाक रूह जी, पवित्र आत्मा जी आपके बीच में आ चुके हैं, आपके पास बैठे हैं। पवित्र आत्मा जी आपको छू रहे हैं, खुदावंद यहोवा आपको छू रहे हैं। खुदावंद यहोवा कान लगाकर आपकी बातें सुनना चाहते हैं। आप अपने दिल की बातें कीजिए अपने दिल की बातें कीजिए। आपके दिल में जो कठिनाइयां, परेशानियां हैं, आप उनसे बातें कीजिए। आप प्रेयर में उनसे बातें कीजिए, जैसे आप अपने एक बच्चे से, अपने पिता से, भाई से बातें करते हो। आप पाक रूह से बातें कीजिए। पाक रूह के आप जो यहाँ पर वर्शिप में जो जन इकट्ठे हुए हैं, आप उनकी बातें सुनिए और जो उनके दुख हैं उनको तुरंत दूर कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से जो यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर में इकट्ठा हुए हैं, अभी से उनके दुख जाते रहे और उनके घरों में फाइनेंस में तरक्की, उनके घरों में खुशियाँ आए। अपने दिल की बातें कीजिए अपने दिल की बातें बताइए पाक रूह को कि आप किस बात से दुखी हैं, आप क्या चाहते हैं। पाक रूह से अपनी बातें कीजिए। पाक रूह जी यहाँ जन जो हैं उनके घरों से जादू टूना क्लेश जाते रहे, उनके परिवारों में खुशियाँ आए। जो उनके परिवारों में बिखराव है वहाँ एकजुटता आए, जहाँ परिवार में आदर नहीं है वहाँ उनमें सम्मान आए। पाक रूह जी हम चाहते हैं यहाँ जो परिवार है उनके घरों में ये ऐतिहासिक साल हो, उनके घरों में खुशहाली आए। ये नया साल जो है हमारी हर पुरानी कमियों को दूर करे। जिनके पास घर नहीं है आप उनको घर से ब्लेस करो, जिनके सर पर कर्जा है आप उनको कर्जे से मुक्त करो, और जिनके पास रोजगार नहीं है आप उनको रोजगार दो। और वो जहाँ किसी के पास काम करते हैं
उनके पास काम करने वाले, खुद का कारखाना हो, खुद का इकाई हो, खुद का उद्योग हो, तो लोग उनके पास आके काम करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। जब हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये बातें कर रहे हैं तो उसी वक्त आप इंस्टेंट चमत्कार देखेंगे कि जो बातें आपकी 10, 20, 50 साल से लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, वो तुरंत उन पर अमल होना शुरू हो जाएगा। आपको खुशखबरियां मिलेंगी, आपकी जिंदगी से निराशा के जो खंडर हैं वो हट जाएंगे, आपके सिरों से जो है उदासियों की राख वो खुदाबंदी होगा पाक रूह के द्वारा, उसकी महासामर्थ के द्वारा जो स्वर्गदूत आएंगे वो आपके सिर से निराशा की राख, उदासियों की राख हटाएंगे। आपके सर पर वो जैतून पहाड़ का वो तेल लगाएंगे, अनॉइंटिंग ऑयल, हर्ष का तेल लगाएंगे, जिसके आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आपकी जिंदगियों से फेलियर लफ्ज खत्म हो जाएगा। वो आपके सिर पर प्रभु यहोवा का ताज रखेंगे, वो स्वर्गदूत आएंगे आपके सिर पर प्रभु यहोवा का ताज रखेंगे, जिससे कि उनको पता लगेगा कि ये जन मेरा है, ये जन प्रभु यहोवा का जन है, ये यरूशलेम के बेटे बेटियां हैं, ये यरूशलेम के परिवार से हैं। और शैतान जादू टोना उसकी महासामर्थ की आग में जल जाएगा और नरक में भेजा जाएगा। इन्हीं बातों को आज हम जानेंगे कि प्रभु खुदावंद यहोवा ने मलाकी नबी से अपने दिल की क्या बातें की, वो क्या कहना चाहते थे मलाकी नबी को, और मलाकी नबी ने लोगों में जाके क्या संदेश दिया, उनको कैसे समझाया, उनको समझाया या उनको किस ढंग से समझाया, ये फटकार लगाई, गुस्सा हुए। आज हम जानेंगे मलाकी नबी के द्वारा। मलाकी आज हम पढ़ेंगे मलाकी अध्याय 2 आयत 7। ਮਲਾਕੀ ਅਧਿਆਇ 2 ਆਇਤ 7। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे खुदावंद यहोवा मलाकी से सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि ये जो आज के याजक हैं, चाहे वो सदीकी हैं, चाहे फरीसी हैं, चाहे आज के लोग हैं जो वो पाप दर पाप, पीढ़ी दर पीढ़ी पाप करते जा रहे हैं, उनके पूर्वजों को मैंने आत्मिक रहना सिखाया, लेकिन ये याजक उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर पाप हो गया, छोटा पाप हो गया, छोटी बलि दे दो, बड़ा पाप हो गया, बड़ी बलि जो है वो ले आओ, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये व्यवस्था, ये काम जो था टेम्परेरी था, इससे उनको शह मिली, उनको एक और रास्ता मिल गया कि पाप करते जाओ, बलियां देते जाओ। परमेश्वर खुदावंद यहोवा इस बात से बहुत दुखी हुए कि अगर ऐसा रहा, अगर ऐसी व्यवस्था रही, मैंने तो मूसा को ये बोला था कि चलो किसी पुरुष से, स्त्री से या मेरे जन से गलती से अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो उसके लिए बलि की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये लोग तो इन्होंने बलि के एक जो परंपरा है, जो गलती को माफी के लिए बलि मैंने इनको बोली है, ये तो उसको एक परंपरा बना ली है कि गलतियां करते जाओ और बलि देते जाओ, और जो बलि लेने वाले याजक हैं उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है और ये पाप दर पाप करते जा रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, व्याभिचारी हो गए हैं, इनमें जो है ईर्ष्या, जलन, विरोध। क्योंकि जब एक याजक बलि लेता है किसी निर्दोष की, तो दूसरा याजक सोचता है कि इसके पास तो इसकी ड्यूटी थी मंदिर में, ज़्यादा पैसा हो गया तो मैं अब क्या करूँ, इससे ज़्यादा पैसे कैसे बनाऊँ। तो वो सोचता है कि निर्दोष प्राणी तो महंगा है, मैं चलो उसको बोलूँगा तेरे पास इतना पैसा नहीं है तो बीमार ही लेगा। तो वो एक दूसरे से होड़ में वो व्याभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और जब वो व्याभिचार की तरफ गलत काम कर रहे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। तो आगे हम देखेंगे कि मलाकी नबी ने क्या बोला, उनको कैसे समझाया। अध्याय 3 आयत जो है वो 10। मलाकी 3 अध्याय
ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यहोवा ने देखेंगे तो बहुत पाप कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं अपनी झोली में डाल रहे हैं। इनको थोड़ा सा इस ढंग से समझाया जाए कि ये पाप की कमाई है, पाप की कमाई लेना बंद करो और जो तुम कमा रहे हो वो अच्छे ढंग से कमाओ, और जो अच्छे ढंग से कमाओ तो उसमें से अपना दशमांश निकालो, और जो आप हमारा अगुआ है, जहाँ हम जाते हैं मंदिर में, चर्च में, वहाँ दो, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए पानी का, खाने पीने का प्रबंध करना पड़ता है। जो मंदिर है, भवन जिसको हम चर्च बोलते हैं, अगर वो कहीं से टूट जाए या उसकी रिपेयर के लिए वहाँ पर पैसा चाहिए होता है, तो वो सीधा परमेश्वर तो पैसा नहीं देता, वो एक साधन बनाता है कि आप लोग सब कुछ अपने पास रख रहे हो। इन बातों को आप दशमांश के रूप में एक व्यवस्था, जिसको लेवी व्यवस्था बोलते हैं, नाम दिया गया, और उन्होंने ये एक व्यवस्था लागू कर दी कि अब आप दशमांश देना शुरू करें। तो हम उसके आगे में देखेंगे तीसरे का 1 अध्याय 3 और आयत 1 मलाकी 3 अध्याय आयत 1 मलाकी 3 अध्याय और आयत 1। हाँ जी। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने खुदावंद यहोवा है, उन्होंने मलाकी से क्या बोला, क्योंकि मलाकी का नाम भी होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का संदेश वाहक, वो दूत जो परमेश्वर का संदेश लेकर आया है, वो दूत जो परमेश्वर का संदेश लेकर जाता है। और फरीसी सदीकी नबी, आम लोग, उनके बीच में मलाकी ने वो संदेश दिया कि देखो प्रभु यहोवा ये कह रहे हैं कि मैं अपने दूत को भेजता हूं, मैं खुद नहीं आया, मेरे को परमेश्वर ने आने का यहाँ हुक्म दिया है, मैं परमेश्वर के कहने पर यहाँ आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत पाप कर चुके हैं। आप व्याभिचार, ईर्ष्या, जलन, विरोध, इन कामों में आगे बढ़ चुके हो। इसलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमको सीधे रास्ते पर लाऊं, तुम्हें सुधारूं। और वो प्रभु खुदावंद यहोवा जिसको तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का वही यही वचन है। मलाकी नबी ने ये बोला, ये उसने उस वक्त बोला कि जब इस धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, और यीशु के आने से 450 साल पहले उन्होंने ये संदेश दिया कि खुदावंद अपने बेटे को यहाँ पर भेजने वाले हैं। आप लोग समझो इन बातों को और अपने पापों से हट जाओ। यही बातें जो हम लोग आज यहाँ 1 घंटे के लिए प्रभु की वर्शिप में शब्द के दिन इकट्ठा हुए हैं,
बहुत लोग इस वक्त अपने दुकानों पर बैठे हैं, शाम का हिसाब किताब कर रहे हैं, कितना पैसा खोया कितना पाया। कोई इस वक्त नशों में डूब रहा है, कोई इस वक्त किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहा है, कोई सुबह कचहरी में झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन आप लोगों को खुदावंद यहोवा ने चुना, इसलिए चुना कि इस सबत के दिन में आप इकट्ठा हों और उसके नाम की महिमा करें। जब आप उसके नाम की महिमा करेंगे तो वो आपको फलवंत करेगा, आपका नाम अनंत जीवन के लिए लिखा जाएगा, आप सत्यता के साथ अपना जीवन जिएंगे। आप जब परमेश्वर का नाम लेते हो तो परमेश्वर खुश होता है, वो अपना कान लगाकर अपनी बातें सुनता है। जहां आप इकट्ठा होते हो 2 या 3 लोग खुदावंद यहोवा के नाम से, वो अपने पुत्र यीशु को वहां भेजता है। बाइबल में लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में आता हूं। तो खुदावंद यहोवा ने यहाँ पर पागलों को अपने स्वर्गदूतों के साथ यीशु नासरी जी हमारे बीच में आए हैं। हम उनसे अपने दिल की बातें की और वो हमारी बातों को उन्होंने कान लगाकर सुना। और आप देखेंगे आपको जल्द ही सुसमाचार सुनने को मिलेंगे। आप प्रभु के साथ ही ये वाचा करो कि हम अपने बच्चों को भी आत्मिक बनाएंगे। जब वो आत्मिक होंगे तो वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम अपने खुदावंद यहोवा पिता के धन्यवादी हैं कि जो उन्होंने ये सबत के दिन हमारी बातों को सुना। खुदावंद यहोवा, आपने हमारी बातों को सुना और आपकी योजना है हमारी जिंदगी में सफल हो। जो आप चाहते हैं हमारे लिए आप वो करो। हमें मालूम है जो आप हमारे लिए करोगे वो अच्छा ही करोगे। एक बाप हमेशा अपने बेटों के लिए, परिवार के लिए अच्छा करता है। हम अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, अवीनु शेबा शमाइम ताबो मल्क कुतेका ये आसे रेचन खवा आयदस वे आशेरना आसे वाशमाइम तेनुलानो हायुम लेखेम खुकेनु उश्लाखलानु एदश मतेनु काशेर सौथीम अनाखनुला आशेर अशमनानु वेलवी एनुलिदे मसा की इम्हस लेनु इनहारा की लेखावा मम लेखा वे हागे बोरा वे हती फेरे ले ओला मैं ओला मिम आमीन वे शेम यीशु हा मसीहा। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को माफ कर जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया। और हमारी अगुवाई कर ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा तेरे पराक्रम सदा आपके हाथ में है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।